اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کے سامنے فسجدوا الا ابلیس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے ابا واستکبر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافرین میں سے تھا یا کافرین میں سے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اس کا ذکر فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت بتلانے کے لیے ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلائے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیے کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. ظاہر بات ہے کہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو فطری طور پر وہ تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے تھے یا اس وقت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دے دی کہ فلانی چیز کس کام کے لیے آئے گی، فلانا کے نام کیا ہے وغیرہ بتلا دیا. علمی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت کر کے دکھائی فرشتوں کے سامنے. یہاں فرشتوں کا تذکرہ ہے اور علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے. تو چونکہ فرشتے جناتوں کے مقابلے میں افضل ہے، بہتر ہے، بڑھ کر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، جناتوں کا تذکرہ نہیں کیا. حالانکہ جنات بھی اس حکم کے اندر میں شامل تھے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے تو جناتوں کو بھی حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کی طرف یا آدم کے لیے فسجدوا الا ابلیس تمام نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی اور علم ابدی کے اعتبار سے یہ کافر تھا. کان
काना का माना अगर था का करें तो तर्जुमा होगा वकान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से था। यानी अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म अज़ली है और इल्म अबदी है, अल्लाह तबारक व तआला जानता था कि ये हज़ारों लाखों साल इबादत करने के बावजूद भी ये कुफ्र की हालत के अंदर में मरेगा, तो ये अल्लाह ताला के इल्म में था। इसलिए वकान मिनल काफिरीन का तर्जुमा होगा कि वो अल्लाह के इल्म में काफिरों में से था। बाज़ लोगों ने काना का तर्जुमा सारा का किया, वह सारा मिनल काफिरीन, काना मिनल काफिरीन उसका तर्जुमा किया वह सारा मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया। इबादत करता रहा, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के अंदर में हज़ारों साल उसने इबादत के अंदर में गुजार दिए, लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या उनके सामने सजदा करने को इनकार करके सारा मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया। अबा वस्तकबर, इनकार किया, नाफरमानी की, वस्तकबर और घमंड किया, तकब्बुर किया। एक मरतबा इसी रमज़ान के अंदर में बतलाया था कि कुरान की तफसीर कुरान ही के ज़रिया से जो की जावे ये सबसे बेहतरीन तफसीर होती है। इस आयत की तफसीर के अंदर में दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इसका ज़िक्र फरमाया है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को हुक्म दिया कि सजदा करो आदम के सामने, या आदम को सजदा करो, तो शैतान ने इनकार कर दिया और दलील ये पकड़ी कि खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, और कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, आदम से मैं अच्छा हूँ। क्या वजह अच्छा होने की? खलक़तहु मिन तीन, खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि आदम की पैदाइश मिट्टी से हुई, शैतान की पैदाइश आग से हुई। मिट्टी के अंदर में सिफत और खासियत नीचे आने की है। आप कोई पत्थर या कोई ढेला या कोई भी चीज़ मिट्टी से जो बनी हुई है उसको अगर आसमान की तरफ फेंकेंगे तो आपके हाथ की ताकत, जिसको कसर कासिर कहते हैं, आपके हाथ की ताकत उस चीज़ के साथ में जब तक लगी हुई है वहाँ तक वो चीज़ ऊपर जाएगी, और ताकत ख़त्म हो जाएगी तो वो चीज़ ज़मीन पर वापस आएगी। और आग के अंदर में खासियत और सिफत ऊपर जाने की है। आप किसी भी जगह बंद कमरे के अंदर में भी अगर आग लगाओ तो आग भड़क करके ऊपर जाएगी। शैतान ने ये कहा कि इस इंसान को पैदा किया मिट्टी से, और मिट्टी की सिफत और मिट्टी की खासियत नीचे आने की है, झुकने की है, और मुझे पैदा किया आग से तो मेरी सिफत ऊपर जाने की है। तो ये होना चाहिए कि ये इंसान जिसको तूने पैदा किया वो मेरे सामने झुके, इसलिए कि मिट्टी की खासियत झुकने की है, नीचे आने की है, और मेरी सिफत और खासियत ऊपर जाने की है। तो ये उसने तकब्बुर किया। फस्तकबर अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरीन में से हो गया। कल बतलाया था और आज भी दूसरी तफसीर की किताबों के अंदर में भी देखा, तो इस आयत की तफसीर के अंदर में लिखा है कि ये ले आदम वइद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम, ली आदम, ली आदम का माना है आदम के लिए। तो तर्जुमा ये होगा कि याद करो जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि सजदा करो आदम के लिए। लेकिन दूसरे हजरात ने लिखा है कि ये जो लाम है, लाम ली, ये लाम इला के माने के अंदर में है। यानी तर्जुमा ये आयत ये होगी वइद कुलना लिल मलाइकति इसजुदू इला आदम, आदम की तरफ सजदा करो। जैसा कि कल मैंने बताया था कि हम सजदा करते हैं अल्लाह को
काबा की तरफ, क़िबला की तरफ। हम काबा को सजदा नहीं करते और क़िबला को सजदा नहीं करते। इसी तरीके से मुफस्सिरीन का ये कहना है कि सजदा तो करना था अल्लाह को, लेकिन आदम के पुतले के सामने सजदा करना था, इसका उसने इनकार कर दिया। इस पर एक बात सजदे के बारे में लंबी चौड़ी लिखी हुई है कि सजदा एक तो तिलावत का सजदा होता है, हम तिलावत करते हैं फिर सजदा करते हैं। फिर नमाज के अंदर में भी सजदा है, नमाज के अंदर में सजदा जो है ये फ़र्ज़ है, अगर आदमी सजदा अदा न करे तो उसकी नमाज नहीं होती। सजदे का माना है वदउल जबहती अलल अर्थ, पेशानी को ज़मीन के ऊपर में रखना, यह है सजदा की तारीफ़। वदउल जबहती अलल अर्थ, पेशानी को ज़मीन के ऊपर में रखना। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि आदमी हवाई जहाज़ के अंदर में नमाज पढ़ता है, हवाई जहाज़ के अंदर नमाज पढ़ता है, चाहे हवाई जहाज़ के अंदर में सजदा भी करता है, उसकी नमाज अदा हो जाती है, इसलिए कि वो नमाज पढ़ने के लिए नीचे ज़मीन पर उतर नहीं सकता और उसके बस की बात भी नहीं है। लेकिन एहतियाती तौर पर उलमा ने लिखा है कि जो नमाज हवाई जहाज़ के अंदर में, एरोप्लेन के अंदर में पढ़ी गई तो उसका इयादा करना ज़रूरी है, ज़मीन पर उतरने के बाद में उसका इयादा कर ले। एक तो ये कि वक्त अगर शुरू हो गया है हवाई जहाज़ में सवार होने से पहले तो ज़मीन पर नमाज पढ़ ले, फिर हवाई जहाज़ में सवार हो। और अगर कोई आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा है और उतरने तक नमाज का वक्त बाकी रहेगा तो हवाई जहाज़ के अंदर में नमाज ना पढ़े, उतरे और उतर करके नमाज पढ़ ले। लेकिन अगर हवाई जहाज़ का सफ़र लंबा है, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, और उस वक्त के अंदर में अगर नमाज कज़ा हो जाने का डर और खौफ और ख़तरा है तो आदमी हवाई जहाज़ में नमाज पढ़ ले, लेकिन उतरने के बाद में फिर उसका इयादा कर ले। तो सजदा करना ज़मीन के ऊपर में सर रखने को कहते हैं। अगली उम्मतों के अंदर में सजदा करने के लिए हुक्म था, लेकिन ये सजदा, एक तो सजदा है सजदा इबादत जो हम अल्लाह के सामने करते हैं, ये सजदा इबादत है, और दूसरा है सजदा ताज़ीम, किसी की इज़्ज़त करने के लिए उसके सामने झुक जाए या अपने आप को उसके सामने झुका दे। इसीलिए तफसीर जलालैन के अंदर में लिखा है कि ये जो सजदा करने का जो हुक्म दिया गया ये सुजूद इन्हिना था, सजदे इन्हिना। इन्हिना का माना है झुकना, इन्हिना का माना है झुकना। तब हमारे सामने एक सजदा तो वो हुआ कि जो ज़मीन के ऊपर में किया जाता है, जो हम नमाज के अंदर में करते, ये सजदा किसी के लिए भी जायज़ नहीं, अल्लाह के अलावा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जायज़ है, इसके अलावा किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। अगर कोई करेगा तो शिर्क कहलाएगा या कुफ्र कहलाएगा। अगली उम्मतों के अंदर में जो सजदा करने का हुक्म था ये सजदा तहिया था, सजदा तहिया। तहिया का माना सलामी करना, सलाम करना, तो सजदा तहिया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में भी है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, इन्नी राइतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल कमर राइतुहुम ली साजिदीन। मैंने 11 सितारे देखे, सूरज देखा, चाँद देखा, कि मैंने देखा कि वो मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। ये सजदा जो था ये सजदा इबादत नहीं था जो हम नमाज के अंदर में सजदा करते, ये सजदा जो था सजदा तहिया था, सलामी का सजदा, झुकने का सजदा। और वही सूरह यूसुफ के अंदर में जब किस्सा पूरा होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने जो है कुएं में डाल दिया, फिर वो काफला वाले ले गए, मिस्र पहुँचे, मिस्र जाने के बाद में वहाँ के अमीर बने, गवर्नर बने, और वहाँ के ये अनाज के ऊपर में उनको मुसल्लत किया गया, अमीन के तौर पर उनको रखा गया। और फिर
ان کے ابا اور اماں اور دوسرے بھائی وہاں پر آئے اور اپنی شریعت کے مطابق تمام کے تمام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کر کے سجدہ کیا. تو یہ انحنا کا معنی ہے سر جھکانے کا. تو اگلی امتوں کے اندر میں یہ تھا. اس امت کے اندر میں جس طریقے سے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنا یہ شرک اور ناجائز ہے، اسی طریقے سے اگلی امتوں والا سجدہ یعنی جھکنا یہ اس امت کے اندر میں جائز نہیں ہے. کسی کے بھی سامنے اپنے سر کو جھکانا جائز نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرے. سجدہ عبادت بھی نہیں اور سجدہ تحیہ بھی نہیں، سلامتی والا بھی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا لَأَمَرْتُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، میں اگر حکم دیتا کسی کو کہ کسی کے سامنے سجدہ کرے تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگلی امتوں والا سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے. ابا واستکبر، انکار کیا اور گھمنڈ کیا، تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ اللہ کے علم ازلی اور ابدی کے اعتبار سے کافرین میں سے تھا، یا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا. اس کا نام جو ہے عزازیل تھا. عزازیل شیطان کا نام جو ہے وہ عزازیل ہے. اور اس کو جو برباد کیا یہ تکبر نے برباد کیا، حسد نے برباد کیا. تکبر عزازیل را خار کرد، بے زندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے جو ہے عزازیل کو اور شیطان کو برباد کر دیا اور ہمیشہ کی ذلتی کے اندر میں اس کو مبتلا کر دیا. ہزاروں سال سجدہ کرنے کے بعد بھی اگر ایک مرتبہ کا سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے کرنے کا اس نے انکار کیا تو ہزاروں سال کے سجدے جو اس کے رائیگاں گئے. اور اس کی تفصیل جو ہے آگے بھی آتی ہے. جب اس کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا تو چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا تھا اور پہچانتا تھا، ایسے غضب کی حالت کے اندر میں بھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے باری تعالیٰ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے میری زندگی لمبی کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیری زندگی قیامت تک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو قیامت تک کے لیے بنا دیا. اور اس نے ٹھان رکھا ہے کہ میں انسانوں کو اور تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، ہر سیدھے راستے کے پاس میں جا کر کے میں بیٹھ جاؤں گا اور جہنم والا راستہ بتلاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مہلت دے دی کہ جاؤ کوئی بات نہیں، تیری جو بات مانے گا اس سے میں جہنم کو بھروں گا اور جو میری بات مانے گا اس کو میں جنت کے اندر میں داخل کروں گا. تو اس دن سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک انسانوں کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. قرآن پاک کے اندر میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، شیطان جو انسانوں کا دشمن ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اب یہ کافرین میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا ان دونوں سے کہ ان میں سے کھاؤ راحت کے ساتھ، فراغت کے ساتھ. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے بھی تم کھانا چاہو. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کل پرسوں عرض کیا تھا کہ مٹی کو جمع کروایا گیا، فرشتے نے مٹی کو جمع کیا، اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا
और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसके अंदर में रूह डाली। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर में अकेले रहते थे और चैन और सुकून उनकी ज़िंदगी के अंदर में नहीं था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने एक मरतबा आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो आदम अलैहिस्सलाम की बाईं जानिब की जो पसली है वो निकाल कर अल्लाह तबारक व ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और आपकी बीवी के तौर पर जन्नत के अंदर में रहने के लिए हुक्म दिया। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, और हमने कहा कि ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत के अंदर में रहो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात लिखी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात लिखी है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा करना चाहा तो मिट्टी को जमा किया। अब एक आदमी का पुतला बनाना और दो आदमी का पुतला बनाना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था। अल्लाह ताला हुक्म दे देता तो दो पुतले बन जाते, एक पुतला आदम का और एक पुतला हव्वा का बन जाता। लेकिन ज़मीन से जो पुतला बनाया गया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बनाया गया और उसी के अंदर में अल्लाह ने रूह फूंकी, फनफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना, हमने हमारी रूह को उसके अंदर में फूंकी और आदम ज़िंदा हो गया। फिर हव्वा अलैहिस्सलाम को पुतले से पैदा नहीं किया या बचे हुए मिट्टी का जो गारा था उससे पैदा नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम की ऊपर वाली बाईं जानिब की पसली से आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया हव्वा अलैहिस्सलाम को। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अजीब व गरीब बात लिखी कि ये बताने के लिए कि ये औरत जो है ये मर्द का जुज़ है, औरत मर्द का हिस्सा है, इसीलिए ऊपर वाली पसली जो है बाईं जानिब के अंदर में एक कम है दाहिनी जानिब के मुकाबले के अंदर में। पसली के ज़रिया से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा करके अल्लाह तबारक व ताला ने इशारा फरमाया कि ये औरत मर्द के बदन का एक हिस्सा है, मर्द के बदन का एक जुज़ है। निकाह के ज़रिया से मर्द और औरत जब मिलते हैं तो मर्द को अपनी औरत का इस तौर पर ख्याल रखना चाहिए जिस तरीके से वो अपने बदन के आज़ा का ख्याल रखता है, आँख का ख्याल रखता है, नाक का, कान का, हाथ का, पाँव का, जिस्म का, सर का, सारे आज़ा का ख्याल रखता है। इस तरीके से मर्द को चाहिए कि अपनी औरत का भी ख्याल रखे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने जो है आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वकुला मिन्हा रगदन हैथु शिअतुमा, और हमने उन दोनों से कहा कि जन्नत में से खाओ फरागत के साथ, खुशी के साथ, हैथु शिअतुमा, जहाँ भी तुम चाहो। वला तक़रबा हादिहि शजरत, और इस दरख्त के करीब मत होना, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, कि कहीं तुम जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। यहाँ तक शैतान अगरचे मरदूद हो गया, उसको दरबार के अंदर में से निकाल दिया गया, लेकिन शैतान को जन्नत के अंदर में जाने की और आने की इजाज़त थी। शैतान इस वक्त तक जो है जन्नत के अंदर में भी आता जाता रहता था। एक बात तो ये है, उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शैतान जन्नत के अंदर में गया और जन्नत में जाकर के समझाया, दोनों को समझाया, आदम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को समझाया कि देखो ये जो दरख्त है, इस दरख्त को खाने से तुमको इसलिए रोका गया है कि अगर इस दरख्त का फल अगर तुम खा लोगे तो फिर जन्नत के अंदर में तुम हमेशा हमेशा रहोगे, और अगर नहीं खाओगे तो थोड़े दिनों के बाद के अंदर में तुमको भी ज़मीन के ऊपर में उतारा जाएगा और जन्नत से तुमको निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने आगे जो बयान फरमाया है और उलमा किराम ने फसाहत और बलागत के एतबार से जो तफसीर की हुई है, ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु, अज़ल्ला का माना है फिसलाया, वरगलाया, हुमा
ان دونوں کو، آدم کو اور ہوا کو۔ دوسری جگہ کے اندر میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا اور ہوا کا اس درخت کے کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ورگلایا، پھسلایا، اور ذلت اور عصیان کا معنی ہے نافرمانی، اللہ کی بات کو نہ ماننا، اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا، یہ عصیان کہلاتا ہے۔ اور عصمت انبیاء ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے لیے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب کے سب معصوم تھے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی کوئی بھی گناہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے صادر نہیں ہوا، یہ عصمت انبیاء ہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے، صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، صحابہ کرام محفوظ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی حفاظت فرمائی گناہوں سے۔ اب کچھ کام ایسے بھی ہوئے کہ صحابہ کرام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر میں چوری بھی ہوئی، صحابہ کرام میں سے کسی نے چوری بھی کی، کسی نے زنا بھی کیا، کسی نے جھوٹ بھی بولا، کسی نے تہمت لگائی، یہ سارے کام سرزد ہوئے۔ یہ اس لیے ہوئے کہ کچھ کام منصب نبوت کے خلاف تھے، نبی نہیں کر سکتا، نبی چوری نہیں کر سکتا، نبی جھوٹ بول نہیں سکتا، نبی زنا نہیں کر سکتا، نبی کسی پر تہمت نہیں لگا سکتا۔ تو ایسے کام کہ جو منصب نبوت کے خلاف تھے، نبی کی شان کے خلاف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر صحابہ کرام سے کروائے، صحابہ کرام سے تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائے۔ اور اس کی جو سزائیں ہیں قرآن پاک کے اندر میں، جس کو حدود کہتے ہیں، سزائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جاری کی، سزاؤں کو جاری کیا۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی طور پر صحابہ کرام سے یہ کام نہ کرواتا تو رہتی دنیا تک اس قرآن پر، اس دین پر، اس اسلام پر اعتراض ہوتا کہ تمہارے قرآن کے اندر میں رجم کرنے کا حکم ہے، یعنی اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو اس کا زنا ثابت ہو جائے، ثابت ہونے کے بعد سینے تک ایک کھڈا کھود کر کے اس کو گھاڑ دیا جائے اور پتھر مار کر کے اس کو مار دیا جائے، اس کو رجم کہتے ہیں۔ اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جائے۔ اسی طریقے سے شراب پینے والے پر سزا دی جائے، اس کو بھی کوڑے مارے جائیں، وغیرہ وغیرہ جو سزائیں ہیں۔ اگر یہ کام صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالی انجام نہ دلواتا تو رہتی دنیا تک قرآن پر، اسلام پر، مسلمانوں پر، نبی پر یہ اعتراض ہوتا کہ تمہارے نبی نے کون سی سزا کو جاری کیا، کون سی رجم کی آیت کے اوپر میں عمل کیا، کون سی زنا کاری کی آیت کے اوپر میں عمل کیا، کون سی جھوٹ کی اور تہمت لگانے کی آیت کے اوپر میں عمل کیا۔ تو یہ رہتی دنیا تک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کے اندر میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو آپ کی زندگی صحابہ کرام نے بھی دیکھی اور عملی طور پر انہوں نے کر کے بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسی جیسا کہ میں پڑھتا ہوں۔ تو کس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا۔ تو صحابہ کرام سے وہ کام کروائے گئے جو منصب نبوت کے خلاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت گامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ آتا ہے، ان کو رجم کیا گیا، لمبا چوڑا قصہ ہے، بہر کے مختصر یہ عرض کرنا ہے کہ رجم کرنے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے ان پر لان تان کرنا شروع کر دیا، برا بھلا بولنا شروع کر دیا کہ کیسی تھی، شادی شدہ تھی اور پھر اس کے بعد میں بھی زنا کاری کی وغیرہ، لان تان کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے جو توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو اگر تقسیم کر دیا جائے اور لوگوں کو درمیان میں دیا جائے تو مدینہ کے 2 پہاڑوں کے بیچ کے اندر میں
बचने वाले जितने भी मुसलमान हैं इन तमाम की मगफिरत हो जाए, ऐसी उन्होंने तौबा की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे काम जो है सहाबा किराम से करवाए। वकुला मिन्हा रगदन हैथु शिअतुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा। तो ये अज़ल्ला के ऊपर में मैं बतला रहा था। अज़ल्ला इसका उर्दू के अंदर में तर्जुमा लग्जिश करते, लग्जिश हो गई, यानी आदमी किसी काम को नेक समझ करके करे, किसी काम को अच्छा समझ करके करे, हालांकि वो नेकी का काम ना हो और हालांकि वो अच्छाई का काम ना हो, किसी काम को करे गुनाह न समझ करके करे। अब ये शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को वर्गलाया कि देखो ये दरख्त का फल खा लो तो हमेशा हमेशा तक तुम यहाँ जन्नत के अंदर में रहोगे, और अगर नहीं खाओगे तभी थोड़े दिनों के अंदर में तुमको भी निकाल दिया जाएगा जन्नत से। तो इन्होंने नेक काम समझ करके, अच्छा समझ करके उस दरख्त के फल को खाया ताकि ये हमेशा हमेशा जन्नत के अंदर में रहने का मौका मिले। हालांकि ये फल खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया था। तो तकवीनी तौर पर चूँकि इंसान की पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया था वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इंसान की पैदाइश से पहले, आदम की पैदाइश से पहले अल्लाह ने कह दिया था कि मैं ज़मीन पर अपना मैं नाइब बनाने वाला हूँ। अब अगर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा उस दरख्त के फल को न खाते तो हमेशा हमेशा जन्नत के अंदर में रहते। तो फिर ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़मीन के ऊपर में नाइब और खलीफा बनने का मतलब क्या? ये तो होना ही होना था, तकवीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये करवाया। तो फ़अज़ल्लहुम शैतानु अन्हा, शैतान ने उन दोनों को फुसलाया उससे। एक बात और रह गई, वला तक़रबा हादिहि शजरत। अल्लाह ताला ने इन दोनों को हुक्म दिया, आदम को और हव्वा को, कि इस दरख्त के करीब भी मत जाना। ये नहीं कहा कि इस दरख्त का फल मत खाना, ये नहीं है। वला ताकुला मिन हादिहि शजरति कुरान में नहीं है कि इस दरख्त के फल मत खाना, ऐसा नहीं है। वला तक़रबा हादिहि शजरत, इस दरख्त के करीब मत जाना, ऐसा है। तब यह दो बातें बयान करना है। एक बात तो ये कहना है कि ये दरख्त कौन सा था, कौन सा दरख्त था कि जिसके फल को खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया। कुरान के अंदर में नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। पूरा कुरान पाक का तर्जुमा या तफसीर देख लो, कहीं पर भी नहीं है, किसी भी हदीस के अंदर में नहीं है कि दरख्त कौन सा था। अपने अपने एतबार से जो है लोगों ने बताया। जलालैन के अंदर में लिखा है, जलालैन के अंदर में लिखा है कि इस दरख्त से मुराद गेहूं का दरख्त था। गेहूं का दरख्त, गेहूं का दरख्त होता है, गेहूं का दरख्त होता है। जलालैन ने जो है 12 जगहों के अंदर में बंडल मारे हैं। जलालुद्दीन सियूती और जलालुद्दीन महल्ली ने 12 जगहों के अंदर में ऐसी बात लिखी हुई है जो जमहूर के मसलक के ख़िलाफ़ है। इनमें से पहली जगह ये है कि ये कहा कि वला तक़रबा हादिहि शजरत, यानी गेहूं का दरख्त या अंगूर का दरख्त। तो न गेहूं का दरख्त होता है, गेहूं का पौधा होता है, और न अंगूर का दरख्त, अंगूर की बेल होती है, वेलो था, अंगूर का वेला होता है, नहीं बेल होती है। तो एक बात तो ये है। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, जैतून का दरख्त था, किसी ने क्या, मालूम नहीं, अलग अलग चीज़ें जिक्र की। एक बात तो ये, एक चीज़ की जब अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तायन नहीं की, मखसूस तौर पर उसका नाम जिक्र नहीं किया, तो हमको मखसूस तौर पर गेहूं का दरख्त या अंगूर का दरख्त या जैतून का दरख्त कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके मानने न मानने के अंदर में ईमान पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, यकीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुफ्र और शिर्क के ऊपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात। दूसरी बात ये अर्ज़ करना थी कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि वला तक़रबा हादिहि शजरत, इस दरख्त के करीब मत जाना। कुरान पाक के अंदर में जीना के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा ही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वला तक़रबुज़ ज़ीना, वला तक़रबुज़ ज़ीना, जीना के करीब मत जाना।
वला तफ़अलु ज़िना ऐसा नहीं है, ज़िना मत करना ऐसा नहीं है, ज़िना के करीब तक मत जाना ऐसा है। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि आदमी ज़िना के करीब मत होने का मतलब ये है कि आदमी ज़िना तक जो पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं उससे दूर रहे। सबसे पहले जो है नज़र की हिफाजत, आदमी नज़र की हिफाजत करे, इसलिए कि यही नज़र अगर पड़ गई किसी के ऊपर में और फिर बात आगे अगर बढ़ गई तो नऊज़ु बिल्लाह, खुदा न खास्ता, ये ज़िना तक पहुंचाएगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, या अली ला तुत्बिउन नज़रत नज़रत फ़इन्नल ऊला लक वस्सानियतु अलैका। ए अली, एक निगाह के पीछे दूसरी निगाह मत डालना, इसलिए कि पहली मरतबा जो नज़र डाली ये तेरे फ़ायदे के लिए, नज़र पड़ी और वापस उठा लिया, फिर दोबारा नज़र उठा करके उस औरत की तरफ नहीं देखा, तो गोया ये फ़ायदे का काम है, सवाब का काम है। वस्सानियतु अलैक, एक मरतबा नज़र पड़ी फिर दूसरी मरतबा नज़र डाली तो ये गुनाह का काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, वला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, कि तुम भी जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु, शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया वहाँ से, फ़अख़रजहुमा, और उन दोनों को निकाल दिया, मिम्मा काना फ़ी, जहाँ कहीं भी वो रहते थे वहाँ से। वक़ुल्ना इहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, और हमने कहा कि उतरो, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, तुम्हारा बास का दुश्मन है। वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर में वक्ती तौर पर ठहरना है और वक्ती तौर पर एक मखसूस मुद्दत तक फ़ायदा उठाना है। तो तीनों को उतार दिया, शैतान को भी, आदम को भी और हवा को भी। इहबितू जमा का सेगा ला करके तीनों को यहाँ पर जिक्र फरमाया। उलमाए किराम ने लिखा है कि शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने इराक के अंदर में उतारा, शैतान को उतारा जन्नत में से, ऊपर से इराक के अंदर में उतारा। और बाज़ लोगों ने इस्फ़हान शहर का नाम भी लिखा, इस्फ़हान के अंदर में उतारा। और बाज़ लोगों ने जो है बसरा का नाम लिखा कि बसरा शहर जो इराक का शहर वहाँ पर उतारा। एक बात तो है कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि जितने भी नई चीज़ें जो आई वो इराक से आई, इराक ही से आई। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कोई बात बयान कर रहे थे और लोगों ने जाकर के हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत अबू हुरैरा ये बात बयान करते हैं। तो फरमा कि वो जब से इराक जा कर के आए हैं तब से नई बातें बयान करते हैं। और इराक के अंदर में एक फ़िरका था, फ़िरका हरूरिया। जब भी कोई नई बात बयान करता तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, और हरूरिया, क्या ये हरूरिया फ़िरके का नाम, हरूरिया फ़िरके से उसका ताल्लुक़ है। अगर हम भी देखें हमारे एतबार से तो जितना भी पाक है वो सब वहीं से आया, इराक ही से आया है। गोश्त पाक कहाँ से आया है? इराक से आया। दूध पाक इराक से आया। मलिदा पाक कहाँ से आया? सब इराक से आया। और ये क्या कहते हैं, बिदत के लिए मशहूर था, बिदत के लिए मशहूर था इराक। तो शैतान को वहाँ पर उतारा और आदम और हवा, एक कौल के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ा पहाड़ी पर और हवा को मरवा पहाड़ी पर। अब ये जानते हैं ये जो सफ़ा मरवा के दरमियान में जो सही करते हैं कोई लंबा फासला नहीं है, तो एक को सफ़ा पर उतारा और दूसरे को मरवा पर उतारा। एक कौल ये है। दूसरा कौल ये है कि हवा को जिद्दा के अंदर में उतारा और आदम अलैहिस्सलाम को अरफात के मैदान के अंदर में उतारा। और एक कौल ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ सीलोन के अंदर में उतारा। श्रीलंका पहाड़, एक पहाड़ है, आदमी पहाड़ है, आदम पहाड़ के नाम से मशहूर है, सीलोन और श्रीलंका के अंदर में।
वहाँ उतारा और हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा के अंदर में उतारा। जिद्दा जिद्दा ये जद्दतुन है, जद्दतुन। जद्दतुन का माना दादी, जद्दतुन का माना दादी। पुराना जो जिद्दा है जिसको बलद कहते हैं, वहाँ पर एक कब्रस्तान है, आज भी मौजूद है जिद्दा के अंदर में। उस कब्रस्तान का नाम है मकबरतु उम्मिना हव्वा। मकबरतु यानी कब्रस्तान, उम्मिना यानी हमारी अम्मा, हव्वा यानी हव्वा, हमारी अम्मा हव्वा का कब्रस्तान। वहाँ पर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है जिद्दा के अंदर में। तो जिद्दा का नाम दादी जो पड़ा, जिद्दा ही, दादी ही की वजह से जिद्दा पड़ा। तो उलमा ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ सीलोन में उतारा और दादी हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा के अंदर में उतारा, और अरफात के मैदान के अंदर में दोनों की मुलाकात हुई, इसलिए इस मैदान को अरफा कहते हैं। अरफे के माना है पहचानना, एक ने दूसरे को पहचाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब निकाला गया तो गमगीन हो गए और माफ़ी मांगने के लिए आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर अल्फाज भी निकलते नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तलकीन फरमाया कि अब ये दुआ मांगो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये फतलक्का आदम मिन रब्बिही, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार की तरफ से सीख लिया, मालूम कर लिया, कलिमातिन, कुछ कलिमात, कुछ अल्फाज, ये रब्बना 35 થઈ ગયા, 35 થઈ ગઈ। સુબહાનલ્લાહ વ બિહમ્દી, સુબહાનકલ્લાहुम्मा।